Hello students, good morning. Today we are here to complete the whole unit of communication skills first. As we have English and communication skills, the very first unit is communication. In this video, we will complete the whole unit of communication skills. The very first question arises in our mind that what is English, what is communication, and what is skills. Our subject name is English and communication skills. English is a language, as you know very well. It is the language of court and judiciary. It is the language of global importance. It has the importance internationally, and it is the language of science and technology, technical advancement. English is a language, and language is medium of communication, as you know very well. इंग्लिश क्या है? एक भाषा है, और भाषा क्या है? संचार का एक माध्यम है. Are you getting me all? So this is English. Now we have English and communication skills. Now we have skills. Communication हम next slide में पढ़ेंगे. Skills means ability and worthiness. Skills क्या है? Ability है, योग्यता है, worthiness है, ठीक है ना? It is ability to read, write, speak, listen and perform any task. यानी skills क्या है? एक कौशल है रीडिंग का, राइटिंग का, स्पीकिंग का, लिसनिंग का और किसी भी टास्क को परफॉर्म करने का. फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में स्किल्स क्या है? रीड, राइट, स्पीक एंड लिसन. यानी वह कौशल जिससे हम बोलते हैं या जिससे हम लिखते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं. ये चार जो स्किल्स हैं, LSRW हमने एक्रोनिम याद रखना है. L फॉर लिसनिंग, S for speaking, R for reading, and W for writing. So this is the skills. Now we have communication. Main topic हमारा यहाँ से start हो रहा है. What is communication? As you know very well, communication is a word which is derived from the Latin word communicare, जो communicare शब्द से लिया गया है, which means to make common, to impart and to share. जिसका मतलब होता है कि अपनी बात को कॉमन कर देना, शेयर कर देना और इम्पार्ट कर देना. यानी communication is the sharing of our ideas, making our thoughts common to all and imparting our ideas, feelings, etc. Are you getting me? And now we have definition according to W.S. Newman and C.F. Summer. Communication is an exchange of facts, ideas, opinion or emotion by two and more than two person. C.F. Summer and W.S. Newman कह रहे हैं कि communication is an exchange of facts. ये किन्हीं तथ्यों का, विचारों का या भावनाओं का क्या है? आदान प्रदान है दो या दो से अधिक लोगों के बीच. तो दिस इज अबाउट कम्युनिकेशन स्किल. दूसरी डेफिनेशन पीटर लिटिल की है कि कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज. इट इज द प्रोसेस बाय मीन्स ऑफ विच वी कम्युनिकेट, बाय मीन्स ऑफ विच वी ट्रांसमिट्स आवर आइडियाज between an individuals or any organization so that an understanding may response result. तो communication हम क्या समझे? Communication is the transmissions of our thought, feelings, ideas, emotions between two and more than two person. It is the sharing of our ideas. It is the transmission, transferring of our thoughts. अब हम आ जाते हैं concepts of communication. Communication का concept क्या है? कहाँ से उत्पत्ति हुई communication की? Is it new or old? Is it only human being can communicate or any other creatures on this earth make communicate? तो this is the concept. तो concept में हम पढ़ेंगे fundamental of civilized society. ये civilized society का क्या है? Fundamental है ना? Backbone of our daily activities like ordering meal in a hotel, hiring taxi, purchasing something from the shop, etc. As old as life exists on this earth. Concept में क्या है? Communication is not a new term. It is as old as life exists on this earth. ये इतना पुराना है जितना जीवन है पृथ्वी पर. अर्ली मैन का हम एग्जाम्पल लेते हैं. अर्ली मैन मीन्स आदि मानव, प्रिमिटिव मैन. Primitive man uses symbols of communication. He used to use such type of symbols like fire, smoke, drum beat, loud voice. वो इन सारे मेथड से कम्युनिकेट करता था. तो कम्युनिकेशन कोई नया टर्म नहीं है बल्कि पुराना है. ह्यूमन एज वेल हैज नॉन ह्यूमन एंटिटीज, दे कम्युनिकेट. केवल ह्यूमन ही नहीं बल्कि सारी लिविंग थिंग्स, जितने भी इस पृथ्वी पर सजीव प्राणी हैं, वो सारे कम्युनिकेट करते हैं.
एवरी क्रीचर हैज देयर ओन वेज टू कम्युनिकेट, उनके अपने तरीके हैं कम्युनिकेट करने के। जैसे हनी बी है, हनी बी को अगर सोर्स ऑफ नेक्टर मिल रहा है, उसको कहीं पे रस का स्रोत मिल गया, शहद का स्रोत मिल गया, तो वो सी डांस डिफरेंटली इन फ्रंट ऑफ अदर हनी, अदर फेलो बीज, है ना। वो अन्य मधुमक्खियों के सामने कैसे करती है, अलग से डांस करती है, ताकि उनको मैसेज कन्वे हो सके कि सी हैज फाइंड द सोर्स ऑफ नेक्टर। तो कंसेप्ट में क्या समझे, इट इज ओल्ड एज लाइफ एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ, यानी कम्युनिकेशन इतना पुराना है जितना जीवन हम पृथ्वी पर पुराना है, और केवल ह्यूमन बीइंग ही नहीं बल्कि नॉन ह्यूमन एंटिटीज भी कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव मोस्ट कॉमन वेज टू कम्युनिकेट, आप जानते हैं स्पोकन वर्ड से कम्युनिकेट कर सकते हैं, रिटन वर्ड से कर सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज से कर सकते हैं, एंड विजुअल इमेजेस से हम कर सकते हैं। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, it is very important for the point of view of your examination also, how to process of communication rolled on। अब हमारे दिमाग में ये प्रश्न आ रहा है कि communication is the sharing of ideas, thoughts, feelings, emotions, etc. but how the process rolling on, कैसे रोल होती है, प्रोसेस कैसे चलती है कम्युनिकेशन की, तो कैसे चलेगी देखते हैं, है ना। सपोज आई एम अ पर्सन एट दिस टाइम, मेरे पास कुछ आइडियाज हैं, थॉट्स हैं मेरे दिमाग में, तो मैं आपको क्या कर रहा हूं, उनको कन्वे कर रहा हूं, है ना। तो कम्युनिकेशन की प्रोसेस देखते हैं। सेंडर इज अ पर्सन, सेंडर इज अ पर्सन, ही हैज सम आइडियाज, थॉट्स, इमोशंस, हिज आइडिया, थॉट्स, इमोशंस आर कॉल्ड मैसेज, है ना। और मैसेज इज सेंड थ्रू अ प्रॉपर चैनल, चैनल क्या क्या है, वर्बल हो सकता है, टेलीफोन हो सकता है, वॉइस मेल हो सकता है, सोशल साइट्स, ईमेल, या एनी अदर लाइक टीवी एंड रेडियो, है ना। तो इन चैनल के माध्यम से उस मैसेज को भेजा जाता है दूसरे व्यक्ति को, वो व्यक्ति है रिसीवर। रिसीवर आफ्टर डिकोडिंग द मैसेज ही understand, interpret that message, analyze that message and send a suitable feedback, suitable response, यानी feedback क्या है, आंसर, response of receiver, receiver का जो response होगा that is called feedback, that is called response। Are you getting me? तो हम हरीडली समझेंगे प्रोसेस को। सेंडर इज इनकोडर, सेंडर क्या करता है, जो सिंबल्स उसके दिमाग में आ रहे हैं उनको इनकोड करता है भाषा में, और उनका एक मैसेज फॉर्म करता है, मैसेज को थ्रू प्रॉपर चैनल भेजता है किसी भी दूसरे व्यक्ति को, वो व्यक्ति है रिसीवर। रिसीवर जब एक बार रिसीव कर लेता है, ही सेंड्स अ सुटेबल रिप्लाई एंड रिस्पॉन्स, दैट इज कॉल्ड फीडबैक। तो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वी हैव, ये इसका डिटेल है कि सेंडर इज द पर्सन हु सेंड्स द मैसेज, मैसेज क्या है, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स ऑफ द सेंडर। रिसीवर क्या है, वह पर्सन जो डिकोड कर रहा है, और फीडबैक क्या है, फीडबैक इज द रिस्पॉन्स गिवन बाय द सेंडर, एंड फीडबैक इज द बैकबोन ऑफ द होल कम्युनिकेशन साइकिल, और पूरे कम्युनिकेशन साइकिल का बैकबोन है फीडबैक, है ना। विदाउट फीडबैक वी कांट कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे वर्ब है, मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाई है, जैसे वर्ब है, विदाउट वर्ब वी कांट कंप्लीट the sense of the sentence, हम सेंटेंस का भाव पूरा नहीं कर सकते बिना वर्ब के। इन द सेम वे वी कैन कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विदाउट फीडबैक। तो फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक, तो ये सारा आप लिखेंगे जो हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव breakdown of communication. Yeah, it is not so important, but breakdown we have to understand. सपोज प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन चल रही है, और उसमें कभी मैसेज डिस्टॉर्ट हो गया, या मैसेज सही से नहीं पहुंचा, मैसेज अम्बिगुअस है, मतलब अनिश्चित है, वैग है, पता नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई सेंडर और रिसीवर के बीच में, तो वहां पे ब्रेकडाउन हो जाता है। यानी हम कहेंगे कि बैरियर कॉजेस ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन क्यों हो रहा है, बैरियर आ रहा है कम्युनिकेशन में। जब कम्युनिकेशन में बैरियर आएगा तब ब्रेकडाउन हो गए हैं, तो बैरियर कॉजेस ब्रेकडाउन, है ना। उसके कारण हो सकते हैं कि सेंडर फेल्स टू फॉर्मुलेट द प्रॉपर मैसेज, सेंडर अच्छे से मैसेज नहीं भेज पा रहा है, या रिसीवर सही से नहीं समझ पा रहा है, या चैनल में डिस्टॉर्शन हो गया है, बैटरी एग्जॉस्ट हो गई, वायरस की प्रॉब्लम हो गई है ना, या हमारा रिचार्ज खत्म हो गया। सच टाइप मेनी बैरियर्स की अलग से वीडियो है, तो बहुत सारे बैरियर्स की वजह से यानी ब्रेकडाउन आ जाता है। तो बैरियर्स कॉजेस ब्रेकडाउन इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। हमारे मेन टॉपिक प्रोसेस है, हमने वो समझ लिया है। अब उसके बाद हमारे पास आ रहा है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। 1 मिनट। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स में हम जानते हैं कि फॉर्मल, इनफॉर्मल, वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन, स्पोकन, एंड वी हैव
डाउनवर्ड अपवर्ड हमारे टाइप से। फॉर्मल समझेंगे पहले। इन दिस कम्युनिकेशन वी हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसमें हम रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं, दिस इज फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल मींस वी डू नॉट फॉलो या वी ओकेजनली फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन, है ना। इसमें एग्जांपल मैंने दिया है आपको, अवर कम्युनिकेशन विद अवर बॉस इज डिफरेंट फ्रॉम अवर कम्युनिकेशन विद अवर फ्रेंड। हम अपने बॉस से, अपने प्रिंसिपल से, अपने टीचर से या किसी ऐसे व्यक्ति से जो ऑफिशियल्स हैं उनसे बात कर रहे हैं, उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, और अपने फ्रेंड से कम्युनिकेट कर रहे हैं, दैट इज टोटली डिफरेंस, है ना। यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा, अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं या अपने बॉस से कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो बॉस से जो कम्युनिकेशन हो रहा है दैट इज फॉर्मल, वी आर फॉलोइंग द सम रूल्स रेगुलेशन कर्टसी एंड वी आर बाउंडेड विद सम ऑब्लिगेशंस। एंड इनफॉर्मल में क्या है, वी आर लिटिल बिट फ्री फ्रॉम दोज ऑब्लिगेशंस, है ना। वी ओकेजनली फॉलो, इसका मतलब ये नहीं कि हम रूल रेगुलेशन मदर से बात कर रहे हैं या दोस्त से बात कर रहे हैं तो थैंक यू नहीं बोलेंगे, बोलेंगे, लेकिन ओकेजनली वी आर नॉट बाउंडेड विद सच टाइप ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। तो ये हुआ फॉर्मल और इनफॉर्मल। वर्बल क्या हुआ, वर्बल जैसे कि इसके वर्बल का मतलब होता है शाब्दिक, है ना, यानी जो शब्दों से हो रहा हो। वर्ब का मतलब शाब्दिक है यहाँ पे, वर्बल शाब्दिक कम्युनिकेशन जो शब्द से हो रहा है, यानी कम्युनिकेशन थ्रू वर्ड्स, है ना, जो शब्द से कम्युनिकेशन होता है। सेंटेंसेस और लैंग्वेज, वर्ड से, सेंटेंस से और लैंग्वेज से, लाइक लेटर, सर्कुलर, मेमोरेंडम, ये सारे क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन हो सकते हैं। नॉन वर्बल मीन्स कम्युनिकेशन विच इज टेकिंग प्लेस बाय द हेल्प ऑफ द साइंस एंड सिंबल। नॉन वर्बल में किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा है, केवल साइंस का प्रयोग हो रहा है, यानी चिन्हों का प्रयोग हो रहा है ना, सिंबल्स का प्रयोग हो रहा है, प्रतीकों का प्रयोग हो रहा है। और बॉडी लैंग्वेज का, बॉडी लैंग्वेज मैंने अलग से वीडियो आपको बताया था क्लास में भी कि बॉडी लैंग्वेज के बहुत सारे पार्ट्स है। जैसे फेशियल एक्सप्रेशन से हम कम्युनिकेट करें, दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट, ड्रेसिंग एटिकेट्स, टोन ऑफ वॉइस, जेस्चर, पोस्चर, दीज आर पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी लैंग्वेज। तो बॉडी लैंग्वेज से जब कम्युनिकेट कर रहे हो, सिंबल से कम्युनिकेट कर रहे हो, साइन से कम्युनिकेट कर रहे हो, दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे बड़ा सा फ्लैक्स लगा है, हम चौराहे पे जा रहे हैं, बड़ा सा फ्लैक्स लगा है, फ्लैक्स में मोदी जी दिख रहे हैं और वहां पे सिलेंडर वाली कोई महिला है और वो उसको सिलेंडर देते हुए दिख रहे हैं, हमारे जो पीएम है। तो हमें लग रहा है अच्छा कोई योजना है गवर्नमेंट की, है ना। हमारे दिमाग में पूरा लिटरेचर, पूरा थ्योरी बन रहा है कि गवर्नमेंट हैज अ दैट इज पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, एंड और इसमें क्या है कि गरीबों को कोई सिलेंडर दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो दैट इज ऑल अबाउट द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। अ पिक्चर इज वर्थ देन थाउजेंड्स ऑफ वर्ड, है ना। एक पिक्चर जो है, एक जो तस्वीर है, उसका जो इंपॉर्टेंस है 1000 शब्दों से भी ज्यादा है। 1000 शब्दों से भी ज्यादा क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस है। आर यू गेटिंग मी? So we have completed formal, informal, verbal and non-verbal. Now we have downward, upward, horizontal and vertical. ठीक है। Downward communication from authoritative power to subordinate, यानी downward means down means नीचे, word means की ओर, है ना। downward communication यानी ऑफिसर्स से, authoritative powers का मतलब है ऑफिसर्स से सबोर्डिनेट वर्कर्स की तरफ जब कम्युनिकेशन फ्लो हो रहा हो, दैट इज डाउनवर्ड। अपवर्ड क्या है, इट इज नॉन डायरेक्टिव इन नेचर, सजेशंस फ्रॉम सबोर्डिनेट। जब सबोर्डिनेट से कोई कम्युनिकेशन फ्लो हो रहा हो, वो सजेशंस की फॉर्म में हो रहा हो, वो कंप्लेंट की फॉर्म में हो रहा हो, वो कम्युनिकेशन हो रहा हो ऑफिसर्स को, जब सबोर्डिनेट ऑफिसर्स को कम्युनिकेट कर रहे हो तो उसको बोलते हैं डाउनवर्ड सॉरी अपवर्ड कम्युनिकेशन। इट इज नॉन डायरेक्टिव इन प्रिंसिपल, इसमें डायरेक्शंस नहीं होते, यानी इसमें कोई आदेश निर्देश नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो सबोर्डिनेट होता है, जो छोटा एम्प्लॉय होता है, वो अपने बड़े एम्प्लॉय को कोई निर्देश नहीं दे सकता है। तो ये नॉन डायरेक्टिव होता है प्रिंसिपल नेचर में। और जो डाउनवर्ड है ये डायरेक्टिव होता है, इसमें डायरेक्शंस भी हो सकते हैं, इसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन, कुछ पॉलिसीज भेजी जाएंगी, है। अब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कम्युनिकेशन हमारा है। हॉरिजॉन्टल, आपको दो लाइंस दिख रही हैं, ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, दिस लाइन इज हॉरिजॉन्टल एंड दिस लाइन इज वर्टिकल। टेक्निकली हम इसको समझेंगे। हॉरिजॉन्टल मींस ऑफिसर हैविंग सेम रैंक, जब सेम रैंक के ऑफिसर कम्युनिकेट कर रहे हो, है ना। मैनेजर सेल्स, मैनेजर परचेज, मैनेजर क्वालिटी एंड मैनेजर फाइनेंस, सारे मैनेजर्स हैं लेकिन अलग अलग उनका क्या है, काम अलग अलग है, रैंक एक जैसी है। तो दिस कम्युनिकेशन अमंग्स टू एंड मोर देन टू पर्सन्स ऑफ सेम रैंक, officers having same rank in any organization, they communicate, that is horizontal type of communication. vertical communication क्या हो जाएगा, communication flows from officers to subordinate, यानी vertical के दो टाइप हैं, we have already discussed those,
है ना। वर्टिकल के दो टाइप कौन कौन से हैं, पहला डाउनवर्ड हो गया, यानी ऑफिसर से सबऑर्डिनेट को मैसेज आ रहा है, फ्लो हो रहा है, और दूसरा टाइप हो गया अपवर्ड, यानी सबऑर्डिनेट से, यानी छोटे इंप्लॉइज से बड़े इंप्लॉइज को, अप मींस ऊपर, वर्ड मींस की तरफ कम्युनिकेशन फ्लो हो रहा हो, तो वो वर्टिकल कम्युनिकेशन, यानी वर्टिकल हैज टू टाइप्स, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। ठीक है, ये हायरार्किकल लेवल है, इससे हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कम्युनिकेशन को समझेंगे। हायरार्की कैसे होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, भाई पहले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, फिर वाइस प्रेसिडेंट हैं, फिर एजीएम हैं, फिर मैनेजर हैं, फिर सुपरवाइजर हैं, फिर फोरमैन है ना। तो ये नीचे को कम्युनिकेशन चल रहा है ऑफिसर्स से छोटे एम्प्लॉइज की तरफ, तो ये हो जाएगा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। जब ऊपर को होगा छोटे एम्प्लॉइज से यानी सबऑर्डिनेट से, और बड़े एम्प्लॉइज को, तो ये अपवर्ड हो जाएगा, है ना। ये एरो का निशान ऊपर के लिए बना है, यहाँ पे एरो नीचे के लिए बना है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन को कैसे समझेंगे, सुपरवाइजर 1, सुपरवाइजर 2, सुपरवाइजर 3, ये तीनों क्या कर रहे हैं, आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल वाई, यानी एक लाइन में चल रहे हैं, दिस लाइन इज हॉरिजॉन्टल बताया था, तो ये एक लाइन में कम्युनिकेशन फ्लो हो रहा है, तो दिस इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अब आ जाएगी इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। विदाउट कम्युनिकेशन वी कांट सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, हम इस वर्ल्ड में, इस संसार में सर्वाइव नहीं हो सकते हैं। कम्युनिकेशन इज द बेसिक नीड ऑफ सिविलाइज्ड सोसाइटी। कम्युनिकेशन अवर ऑल द एक्टिविटीज लाइक ऑर्डरिंग मील इन अ होटल, इन अ रेस्टोरेंट, हायरिंग टैक्सी, ये हेलिंग नहीं है, हायरिंग है, दिस इज हायरिंग, प्लीज दिस इज टाइपिंग मिस्टेक, आर कर दीजिएगा यहाँ। हायरिंग टैक्सी, रीडिंग न्यूज़पेपर, सोशलाइजिंग विद फ्रेंड, ऑल इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन, है ना। तो बिना ये सारी चीजों के हम कम्युनिकेशन, बिना कम्युनिकेशन के हम ये सारी एक्टिविटीज नहीं कर सकते। तो कम्युनिकेशन इज एसेंशियल इन मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड, और कम्युनिकेशन क्या है, मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड में भी क्या है, इंपॉर्टेंस है, इसलिए कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस हो जाती है। ऑल द प्रोग्रेस मेड बाय द ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी टू कम्युनिकेट, हम कितनी कम्युनिकेट एबिलिटी हमारे अंदर है, उससे हमारी प्रोग्रेस डिपेंड करती है। कम्युनिकेशन इज द ब्लड ऑफ मॉडर्न बिजनेस, और ये मॉडर्न बिजनेस का भी क्या है, एक लाइफ ब्लड है, इट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ह्यूमन लाइफ, और ह्यूमन लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। इट इज द बेसिक need of human and society, it is the very very important for our business, it is the very very important for our survival, we can't survive without communication in this world, and our all the activities involve in communication। एरिस्टोटल एक फिलोसोफर हुए हैं, एरिस्टोटल को हिंदी में आपने सुना होगा अरस्तु, उन्होंने कहा है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मैन इज अ सोशल एनिमल, एंड वी can't complete our needs without one's another's help, बिना एक दूसरे की सहायता के हम अपनी नीड्स को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमें कम्युनिकेशन की आवश्यकता पड़ेगी, हमें एक दूसरे से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट पे आते हैं हम, लेवल्स, यस वेरी नाइस टॉपिक वी हैव, लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। लेवल्स मींस फेजेस, levels means stages, levels means steps, in what steps, in what phases communication develop, कौन सी phases में, कौन से stage में communication develop होता है, कैसे communication का विकास होता है। तो लेवल्स में कम्युनिकेशन का विकास यानी कम्युनिकेशन कैसे डेवलप हो रहा है। 4 लेवल्स हमारे पास है। द वेरी फर्स्ट इज इंट्रापर्सनल, सेकंड इज इंटरपर्सनल, थर्ड इज ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, एंड लास्ट वन इज मास लेवल। इंट्रा का मतलब होता है विद इन, इंट्रा मीन्स होता है विद इन यानी के अंदर, यानी किसी चीज के अंदर, दैट इज कॉल्ड इंट्रा पर्सनल। इंट्रा मीन्स विद इन, इंटरपर्सनल मीन्स 2 या 2 से अधिक, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं, मास का मतलब होता है जन समूह, मासेस यानी जन समूह के मीडिया से कम्युनिकेशन। तो 4 लेवल लगभग आपको समझ आ गए होंगे, फिर भी हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। Interpersonal is the basic level of communication. In this level, we communicate within oneself. Within, मैंने बताया था ना इंट्रा का मतलब विद इन, तो विद इन oneself मींस जब हम अपने आप में ही कम्युनिकेशन करते हैं, जब हमें किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती। इट इज द रिफ्लेक्स एक्शन, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है, फंडामेंटल ऑफ द रेस्ट लेवल, और ये अन्य लेवल्स का क्या है, फंडामेंटल है ना, रेस्ट लेवल का फंडामेंटल है। जैसे हम बैडमिंटन खेलते हैं, तो जब हमारे पास कॉक आ रही होती है, तो हमारे दिमाग में क्वेश्चंस और आंसर्स दोनों चल रहे होते हैं, इस तरफ आ रही है, इस तरफ मारना है, इस तरफ मुझे फीडबैक देना है ना। इसका एग्जांपल हम समझते हैं। सपोज वी आर स्टैंडिंग ऑन अ रोड, हम रोड पर स्टैंडिंग खड़े हैं, और फ्रॉम अपोजिट साइड अ स्पीडिंग व्हीकल, अ स्पीडिंग ट्रक इज कमिंग
coming from the opposite side, and we have to our mind sends a signal to our nerve system to kept ourselves aside from the road in order to avoid that accident. उस एक्सीडेंट से बचने के लिए हम क्या करते हैं, अपने आप को अलग कर देते हैं उस रोड से, क्योंकि स्पीडिंग ट्रक आ रहा है, स्पीडिंग व्हीकल आ रहा है, तो दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। ये होता है रिफ्लेक्स एक्शन, यानी हम खुद ही सेंडर हैं और खुद ही क्या है, रिसीवर हैं, खुद ही फीडबैक दे रहे हैं, तो दैट इज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आ जाएगा इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल क्या हुआ, दो या दो से लोगों के बीच जो कम्युनिकेशन चल रहा है वो इंटरपर्सनल है। जो कम्युनिकेशन की मेन आम जो डेफिनेशन है, आम जो मीनिंग है, वो इंटरपर्सनल लेवल है। इंटरपर्सनल मींस दो या दो से अधिक लोगों के बीच वी शेयर आवर आइडियाज, फैक्ट्स, इमोशन अमंग टू एंड मोर टू। अब हम थोड़ा और बड़े हो जाते हैं, अब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट, वी आर द पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। अब हम ऑर्गेनाइजेशन में रह के कम्युनिकेट कर रहे हैं, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। एसबीआई का एग्जांपल लेंगे, इसके दो पार्ट हैं ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के, एक है इंटरनल, एक है एक्सटर्नल। एग्जांपल ऑफ एसबीआई क्या बताया था कि जब हम एसबीआई मुंबई सेंडिंग एनी कॉरेस्पॉन्डेंस, एनी लेटर टू एसबीआई देहरादून, एसबीआई उत्तराखंड, एसबीआई दिल्ली या एसबीआई गुजरात, तो वो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल लेवल ऑफ कम्युनिकेशन कहलाएगा, यानी इंटरनल ही हो रहा है, वो एक्सटर्नल नहीं है ना। और एक्सटर्नल कब होगा, जब एसबीआई पीएनबी को कांटेक्ट करेगा या किसी गवर्नमेंट एजेंसी को, किसी टैक्सेशन एजेंसी को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी संस्थान को कांटेक्ट करेगा, तो दैट इज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, है ना, आउटसाइड ऑफ द बाउंड्री, है ना। बाउंड्री का मतलब इस पे किसी चार दीवारी से नहीं है, बाउंड्री का मतलब यहाँ पे इससे है कि उसकी जो ब्रांचेज हैं, ब्रांचेज की बाउंड्री, जैसे एसबीआई की ब्रांचेज भाई गढ़वाल में भी हो सकती हैं, कुमाऊं में भी हो सकती है, उत्तराखंड में भी हो सकती है, दिल्ली में भी हो सकती है, लेकिन उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल लेवल क्या है, जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं, वहां पे हम इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन करते हैं, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। लास्ट हमारे पास आ जाता है मास लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। जब हम बहुत बड़े जनसमूह को कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, बहुत बड़े जनसमूह को अपनी बात से एजुकेट करना चाह रहे हैं, तो वी टेक हेल्प फ्रॉम द मीन्स ऑफ मास मीडिया। हम मास मीडिया के साधनों का प्रयोग करते हुए, है ना। मास मीडिया के साधन कौन कौन से, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट एंड न्यूज़पेपर, ये सारे, और सोशल मीडिया वगैरह, इनकी हेल्प लेकर हम जब बड़े जनसमूह से बात करना चाह रहे हैं, बड़े जनसमूह को अपनी बात को बताना चाह रहे हैं, अपने आइडियाज, फीलिंग्स को शेयर करना चाह रहे हैं, तो दैट इज मास लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। मास मीन्स होता है मासेस, मास मीन्स जनसमूह, बड़ा जनसमूह, जब उसको जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, मास लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे सपोज 1 दिसंबर को अभी क्या था, विश्व एड्स दिवस था, ठीक है। तो हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, है ना, एक एडवर्टाइजमेंट दे रही है कि एड्स क्या है, उससे बचाव के क्या क्या कारण है, क्या क्या करना चाहिए, व्हाट आर द डोंट्स एंड व्हाट आर द डूज, है ना, ये सारी चीजें। या कोविड है ना, कोविड महामारी के टाइम पे जो जितने भी डूज एंड डोंट्स थे, वो हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें जो भेज रही थी, तो वो किसके माध्यम से, टेलीविजन, रेडियो, सोशल मीडिया, इन सारे माध्यमों से हमारे पास पहुंच रहा था। दैट इज मास लेवल। मास, व्हेन वी वांट टू कम्युनिकेट विद द लार्ज ग्रुप ऑफ द पीपल, व्हेन वी वांट टू एजुकेट द लार्ज ग्रुप ऑफ द पीपल, दैट इज मास लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। Are you getting me? तो 4 लेवल हम कंप्लीट कर चुके हैं। इंट्रापर्सनल इज द फर्स्ट लेवल, इंटरपर्सनल इज द सेकंड, ऑर्गेनाइजेशनल इज द थर्ड, एंड लास्ट इज द मास लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये था हमारा कम्युनिकेशन का यूनिट, लगभग हमने कंप्लीट कर दिया है। मास लेवल ऑफ कम्युनिकेशन के बाद हमारे पास इस स्लाइड का जो कंक्लूजन है, व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस स्लाइड। इस स्लाइड का कंक्लूजन है कि हम कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ चुके हैं कि कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ आवर आइडियाज, थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स एटसेट्रा। एंड कम्युनिकेशन की प्रोसेस हमने पढ़ी, टाइप्स पढ़े हैं और लेवल्स पढ़े हैं। लेवल्स के बाद में चैनल और ऑब्जेक्टिव्स भी आपसे थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन इसके बाद हमारे पास आ गया है। ऑब्जेक्टिव्स मींस कम्युनिकेशन के क्या उद्देश्य हैं। कम्युनिकेशन ऑलवेज हैज अ पर्पस, कम्युनिकेशन ऑलवेज एम एट, कम्युनिकेशन का कुछ उद्देश्य होता है, कुछ पर्पस होता है। कम्युनिकेशन नेवर बी पर्पसलेस, कभी भी ये उद्देश्यहीन नहीं हो सकता है। तो क्या क्या पर्पस हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन, एडवाइस एंड काउंसलिंग, ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस, परसुएशन, सजेशन, एजुकेशन, मोटिवेशन, वार्निंग एंड रेजिंग मॉरल।
इंफॉर्मेशन मीन्स जानकारी का आदान प्रदान, जानकारी लेना और देना। एडवाइस एंड काउंसलिंग, एडवाइस मीन्स सलाह देना, सलाह लेना। काउंसलिंग इज ऑलवेज डन बाय द प्रोफेशनल पीपल, काउंसलिंग किसके द्वारा की जाती है? प्रोफेशनल पीपल के द्वारा, जो प्रोफेशनल होते हैं, जैसे लॉयर हो गए, डॉक्टर हो गए, साइकोलॉजिस्ट हो गए, सोशल वर्कर हो गए, ये काउंसलिंग कर सकते हैं। जैसे आपकी जीप काउंसलिंग कोई एक्सपर्ट ही कर सकता है, आपका टीचर कर सकता है, पॉलिटेक्निक से जुड़े हुए स्टाफ्स कर सकते हैं, यानी कोई आम आदमी आपकी काउंसलिंग नहीं कर सकता है। एडवाइस तो कोई भी दे सकता है ना। ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर इज ऑलवेज डायरेक्ट टू प्रिंसिपल, ये ऑफिसर्स देते हैं सबऑर्डिनेट को। इंस्ट्रक्शंस मींस, इंस्ट्रक्शंस इज द टाइप ऑफ ऑर्डर बट दिस इज द विद गाइडेंस। ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस में क्या डिफरेंस है? ऑर्डर इज ऑलवेज ऑर्डर, इट इज डायरेक्टिव इन प्रिंसिपल, है ना, बट इंस्ट्रक्शंस इज टाइप ऑफ ऑर्डर, इट इज विद गाइडेंस, इट इज ऑर्डर विद गाइडेंस। इंस्ट्रक्शन क्या है? ऐसा ऑर्डर जिसमें गाइडेंस भी दी गई हो, यानी निर्देश, उसको हिंदी में बोलेंगे। परसुएशन, परसुएशन इज द क्वालिटी ऑफ अ प्रोफेशनल, एक प्रोफेशनल की क्वालिटी है जिसमें हम क्या करते हैं, we are able to change the mindset of anybody else without realizing him or her about the change। किसी का माइंडसेट को हम चेंज कर रहे हैं और उसको ये पता ही नहीं है कि उसका माइंडसेट और एटीट्यूड हमने चेंज कर दिया है। दिस इज द क्वालिटी ऑफ परसुएशन, यानी समझाना बुझाना। जैसे सेल्समैन गंजे को कंघी बेच देना, दिस इज परसुएशन। आर यू गेटिंग मी? सजेशन, किसी को सजेशन देना या सजेशन लेना। एजुकेशन, किसी को एजुकेट करना या एजुकेशन देना या एजुकेशन लेना। मोटिवेशन इज आल्सो द पर्पस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन, वार्निंग एंड रीजिंग मॉरल। इनको डिटेल में हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे, अभी हम एक वीडियो में कंप्लीट सिलेबस करना चाह रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन हमारे पास 9 है, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वी हैव चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, भी हमारा एक टॉपिक है। चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, चैनल्स से क्या तात्पर्य है? वही हमने प्रोसेस में पढ़ा है कि चैनल्स इज द मीडियम, मैंने येलो करा हुआ है, चैनल्स इज द मीडियम। चैनल मींस क्या है? मीडियम थ्रू विच मैसेजेस आर सेंट इज कॉल्ड चैनल्स, यानी चैनल से हम क्या करते हैं? मैसेज सेंड करते हैं। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बने दिमाग में लाइएगा, है ना। तो थ्रू विच पाथ, थ्रू विच मीडियम वी सेंड मैसेजेस इज कॉल्ड चैनल, यानी चैनल वह रास्ता है, वह मीडियम है, वह पाथ है जिससे हम मैसेज को भेज रहे हैं। चैनल्स को हम हरियटली पढ़ेंगे। चैनल आर ऑफ 2 टाइप्स, ये 2 प्रकार के हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है, ब्रॉड सेंस में सोचेंगे तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल 2 टाइप्स के चैनल होते हैं। फॉर्मल चैनल कौन से फ्लो करते हैं? हॉरिजॉन्टल, यानी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज आल्सो द चैनल। हॉरिजॉन्टल मींस 2 व्यक्ति एक ही रैंक के या 2 से अधिक व्यक्ति एक ही रैंक के जब बात कर रहे हो, दैट इज हॉरिजॉन्टल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। अपवर्ड चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, यानी अपवर्ड मींस सबऑर्डिनेट से ऑफिसर्स की तरफ इंफॉर्मेशन फ्लो हो रहा है। डाउनवर्ड मींस ऑफिसर से सबऑर्डिनेट की तरफ कम्युनिकेशन फ्लो हो रहा है, यानी वो चैनल काम कर रहा है, तो दिस इज डाउनवर्ड। और डायगोनल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, डायगोनल का मतलब यहाँ पे कोई हायरार्की, यहाँ पे कोई अपवर्ड डाउनवर्ड हॉरिजॉन्टल हम फॉलो नहीं कर रहे, बल्कि हम डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। मैनेजर डायरेक्टली कॉन्टेक्ट्स टू द क्लर्क, मैनेजर डायरेक्ट किससे कर रहा है? कॉन्टेक्ट क्लर्क से कर रहा है। ये क्लर्कल स्टाफ डायरेक्टली कॉन्टेक्टिंग टू दी एनी ऑफिसर्स या एनी अदर ऑफिसर्स हु इज नॉट इन द सेम रैंक, उसकी रैंक का व्यक्ति ना होने के बाद भी वो डायरेक्टली उससे कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। डायगोनल, डायगोनल आप समझ रहे होंगे, कर्ण जैसे बनता है तिरछी लाइन से समकोण बनाते हुए, तो डायरेक्टली हम किसी भी दूसरे ऑफिसर से, दूसरे सेक्शन से हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, दैट इज डायगोनल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन मींस 2 टाइप्स हैं इसके, यानी इसका कोई आधार नहीं है। इनफॉर्मल का मतलब यहाँ पर क्या है? रूल्स रेगुलेशन से नहीं है। इनफॉर्मल मींस इस चैनल का कोई आधार नहीं है, ऑथेंटिक रूट नहीं है, बेस नहीं है। ग्रेपवाइन, पहला है ग्रेपवाइन। ग्रेपवाइन बोलेंगे ग्रुप कम्युनिकेशन, ग्रेपवाइन बोलेंगे र्यूमर्स को, अफवाह को। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में 2 लोग बैठे हैं, उन्होंने वैसी अफवाह फैला दी कि इंसेंटिव बढ़ रहे हैं, 2 ने 4 को फैला दी, 4 6 को, यानी ग्रुप कम्युनिकेशन हो गया। 10 लोगों के बीच बात चल रही कि इंसेंटिव होगा, एम्प्लॉइज का इंसेंटिव बढ़ेगा। जब 2 महीने बाद पता लगा कि इंसेंटिव तो बढ़ा ही नहीं, तो दिस इज ग्रेपवाइन, दिस इज र्यूमर, ग्रुप कम्युनिकेशन। इसका कोई बेस, ऑथेंटिक बेस या इंफॉर्मेशन का क्या कोई आधार नहीं है। कंसेंसस का मतलब आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन वी रीच टू द डिसीजन, वी रीच टू द कंक्लूजन। बहुत लंबी बहस के बाद हम किसी कंक्लूजन पे बैठे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी हड़तालें होती हैं, स्ट्राइक्स होती हैं, उसके बाद कहते हैं कि वार्ता सफल रही है या वार्ता विफल रही। उस वार्ता का सफल रहना या विफल रहने के पीछे कोई कागज नहीं मिलता, कोई रिटर्न ऑथेंटिकेशन नहीं है कि सफल रही है विफल रही है। आपने हड़ताल भी तोड़ दी, बाद में पता लगा कुछ काम ही नहीं हुआ, तो कंसेंसस मींस सलाह मशविरा करना, बातचीत करना, आपस में बातचीत करना। तो इसका भी कोई रूट नहीं होता है, इसलिए ये भी चैनल का काइंड से, लेकिन इनफॉर्मल है, फॉर्मल चैनल नहीं है।
So my dear students, I think we have completed the all syllabus of communication unit. The very first unit is communication. If you have any question, you can chat me, you can call me, and you can raise your questions. Thank you very much. We have completed.